Okay, next topic, female reproductive system. इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, इसके बाद हमने नेक्स्ट सिस्टम वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहले a pair of ovaries, फिर इसके बाद oviduct, फिर uterus, cervix, reproductive organ vagina. So फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के कौन कौन से पार्ट्स होंगे? A pair of ovaries, फिर उसके बाद oviduct, uterus, cervix, vagina. डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं, vagina, cervix, ये पूरा uterus, फिर ये ovaries, oviduct। अब इन सारे कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ovaries क्या है? ovaries, these are a female gonads. Unlike testes, ovaries क्या होते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। टेस्टिस क्या है? वो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स, लेकिन ओवरीज क्या होते हैं? वो इंट्रा एब्डोमिनल्स होते हैं। इसकी लोकेशंस कहाँ पर होती है? They are present on both sides of uterus. यूटरस के दोनों साइड्स के ऊपर क्या होते हैं? एक सिंगल ओवरी होती है। They are held in place in peritoneal cavity by several ligaments. ओवरीज की मॉर्फोलॉजीज को अगर हम देखें तो ओवरीज क्या है? आलमंड शेप होती है, आलमंड शेप। इसका लेंथ होता है 3 to 5 सेंटीमीटर। इसका वेट होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। मैं फिर से क्विकली रिकैपिचुलेट करता हूँ। ओवरीज फर्स्ट कंपोनेंट्स किस फॉर्म में? इसको हम फीमेल गोनाड्स भी कहते हैं। ये इंट्रा एब्डोमिनल्स होते हैं। ये फीमेल गोनाड्स ये डुअल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इसका एक फंक्शंस होगा फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, और इसका दूसरा फंक्शंस होगा फीमेल गैमीट्स या एग्स की सिंथेसिस करना। कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं? दे आर इंट्रा-एब्डोमिनल, सो दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूटरस। यूटरस के दोनों साइड्स पर के ऊपर क्या होते हैं? वहाँ पर ओवरीज होते हैं। ये यूटरस के साथ अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं? सो दे आर हेल्ड इन प्लेस इन पेरिटोनियल कैविटी बाय सेवरल लिगामेंट्स। बहुत सारे लिगामेंट्स इसको पेरिटोनियल कैविटी में रखते हैं और इसको यूटरस के साथ भी अटैच करवाते हैं। इसका शेप क्या होता है? आलमंड शेप होता है। इसका लेंथ होता है 3 to 5 सेंटीमीटर और इसका विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ओवरीज के अंदर क्या होते हैं? देयर आर
tiny sac-like structure. There are tiny sac-like structure inside the ovary. इन tiny sac-like structures को हम कहते हैं ovarian follicles. Inside the ovarian follicles के अंदर क्या होते हैं? immature egg होते हैं जिसको हम कहते हैं primary oocytes. So inside the ovaries there are tiny sac-like structure. These tiny sac-like structures are known as ovarian follicles. Inside the ovarian follicle क्या होते हैं? There are immature egg जिसको हम क्या कहते हैं? Primary oocytes. Each month in adult women, each month in adult woman, one of the ripening follicle, जिसको हम दूसरा नाम है उसका Graafian follicle. One of the ripening follicles, also known as Graafian follicle, eject. ये जो Graafian follicles है या जो ripening follicles है, each month क्या करते हैं? They eject the secondary oocytes. This ejection of secondary oocytes from the Graafian follicle is known as ovulation. This is known as ovulation. Ovulations के बाद ये Graafian follicles खुद को एक glandular structure में convert करता है. इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है. Just to quickly recapitulate the whole story of the first components of the female reproductive system, which is the ovaries, female gonads. They are intra-abdominals. They are located on both sides of the uterus. They are held in place in peritoneal cavity by several ligaments. The shape of the ovaries is almond shape. The length is 3 to 5. The width is 2 to 3 centimeters. Inside each ovary, there are tiny sac-like structures. These tiny sac-like structures are known as ovarian follicles. Inside the ovarian follicles there is immature egg. These immature eggs are known as primary oocytes. Each month in adult woman there occur ripening, there occur maturation of these ovarian follicles. So once the ovarian follicles they are matured, then हम इसको क्या कहते हैं? Then they are known as the Graafian follicles, also known as the ripening follicles. Inside the Graafian follicles there is a secondary oocytes. So the Graafian follicles के अंदर क्या होता है? उसमें secondary oocytes. So each month Graafian follicles से secondary oocytes को eject किया जाता है, उसको release किया जाता है. इस process को हम क्या कहते हैं? इसको हम ovulations कहते हैं. Ovulations के बाद ये Graafian follicles खुद को ये ruptured Graafian follicles, जैसे secondary oocytes निकल जाता है तो फिर ये ruptured Graafian follicles खुद को एक glandular structure में convert करता है.
इसको हम कार्पस ल्यूटियम्स कहते हैं, और वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन्स की सिक्रीशंस करता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या है, वो है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है, ये इनिशियल पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम है। फीमेल के अंदर जो डक्ट सिस्टम्स होता है, उस डक्ट सिस्टम में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ओविडक्ट भी है, उसमें यूटरस भी है, वो सर्विक्स भी है और वेजाइना भी है, सबको हम डक्ट सिस्टम्स कहते हैं। तो डक्ट सिस्टम का पहला हिस्सा कौन बनाता है, वो ओविडक्ट बनाता है। ओविडक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ओवरी के नज़दीक, इट स्टार्ट्स नियर फ्रॉम द रीजन ऑफ द ओवरी, यहाँ से स्टार्ट होता है। और कहाँ पर ये एंटर होता है, ये यूटरस में एंटर होता है। इस ओविडक्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें या इसके हम पार्ट्स देखें, तो ओविडक्ट के अंदर वेरियस पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, और ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ को हम कहते हैं फिम्बरी। So the first part, which is near to the ovary, which is in the form of finger-like outgrowths, इसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरीज कहते हैं। फिम्बरीज के बाद फिर इस फिंगर-like outgrowth के साथ स्टॉक अटैच होता है, या इसके साथ आर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, जिसको हम नाम देते हैं स्टॉक। फिर स्टॉक के बाद इसका नेक्स्ट पोर्शंस होता है, इसको हम कहते हैं एम्पुली। ये जो स्वालन पोर्शन से सेक लाइक पोर्शन से, इसको हमने नाम देना है एम्पुली। यही वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है एग्स की। जब एग को ओवरी से रिलीज किया जाता है, तो ये कहाँ पर आते हैं, इसको रिसीव करते हैं ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसको हमने फिम्बरी नाम दे दिया। फिर उसके बाद आता है फिलामेंट्स या स्टॉक। स्टॉक के बाद फिर तीसरा पोर्शन आता है एम्पुली, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर एग और स्पर्म्स आपस में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पुली। इसका आखिरी हिस्सा जो कि ओपन होता है यूटरस में, उसको हम नाम देते हैं एस्टमस। तो ओविडक्ट क्या है, ये डक्ट सिस्टम का पहला हिस्सा बनाता है, नंबर 1। फिर उसके बाद ओविडक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये ओवरी के नज़दीक से स्टार्ट होता है। उसके साथ ये कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि ओवरी और ओविडक्ट आप उसके दरमियान गैप होता है, आपस में ये कनेक्टेड नहीं होते। फिर उसके बाद यहाँ से ये शुरू होता है, कहाँ पर ये ओपन होता है, ये यूटरस के साथ इसकी जॉइनिंग होती है। किसी भी ओविडक्ट के अंदर क्या होते हैं, उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। पहले पोर्शंस को जो ओवरी के साथ नज़दीक होता है, इसको हम कहते हैं फिम्बरी। फिर आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम स्टॉक या फिलामेंट कहते हैं। फिर स्वॉलन पोर्शंस होता है, जिसको हम एपुलिक्स कहते हैं, और आखिरी हिस्से को हम क्या कहते हैं, उसको हम एस्टमस कहते हैं। ओविडक्ट की फर्दर एक्सप्लेनेशंस क्या है, ओविडक्ट का अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, तो ओविडक्ट के अंदर होते हैं स्मूथ मसल्स। अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखें, इसके लेयर्स को हम देखें, तो इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स के अलावा इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, सिलिएटेड और एंड नॉन सिलिएटेड सेल्स। स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस और सिलिएटेड सेल्स के सिलिया की बीटिंग की वजह से ये एग्स क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द ओविडक्ट टू द यूटरस।
So the function of the smooth muscles and the ciliated cells is to transfer the egg from the oviduct into the uterus. Function of the non-ciliated cells is it provide moist medium to the eggs and to the sperms if they are present. Number one. Number two, ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट देते हैं किस चीज़ को, एग्स को और साथ में स्पर्म्स को. तो सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड इसका फंक्शंस क्या है कि ये मॉइस्ट रखता है किस चीज़ को, एग्स को. दूसरा ये क्या करता है, एग को ये नरिशमेंट देता है. ओविडक्ट के बाद हमने अब नेक्स्ट डिस्कस करना है किस चीज़ को, यूटरस को हमने अब डिस्कस करना है. सिस्टम्स का नेक्स्ट हिस्सा क्या है, वो है यूटरस. Now next कंपोनेंट्स वो हैं यूटरस. सो यूटरस की लोकेशंस कहाँ पर होती हैं, यूटरस इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. पेल्विस रीजन्स के अंदर यूटरस होता है. यूटरस क्या है, दिस इज जस्ट लाइक inverted pear shaped structure. Location in pelvis regions, shape inverted pear shaped structure. Uterus is hollow, muscular. It is a hollow, muscular structure. यूटरस का मेन फंक्शंस क्या है, it receive the embryo, then it retain the embryo, and फाइनली ये क्या करता है, इट नरिश द एम्ब्रियो. सो इसके 3 फंक्शंस होंगे. ये एम्ब्रियो को रिसीव करता है, उसको फिर इम्प्लांट करता है, रिटेन करता है, और फिर इनिशियली उसको ये क्या करते हैं, ये उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है. यूटरस की हिस्टोलॉजीज या यूटरस के 3 लेयर्स होते हैं. आउटरमोस्ट कवरिंग, ये 3 लेयर्स कौन कौन से हैं. एक को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम. जो आउटरमोस्ट थिन कवरिंग होती है यूटरस की, वो थिन कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं. सो पेरीमेट्रियम क्या है, इट इज द आउटर most thin covering of the uterus. फिर उसके बाद the next layer उसको हम कहते हैं myometrium. Myometrium क्या है, it is the middle thick muscular layer. मिडल थिक मस्कुलर लेयर जो कि स्मूथ मसल से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम. यही मस्कुलर लेयर, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होती है, यंग वन की डिलीवरी होती है. जब मायोमेट्रियम के मिडल लेयर के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं तो उससे बर्थ क्या हो जाता है, वो एकम्प्लिश हो जाता है. सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम.
इनर मोस्ट लेयर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम, इसके आगे फिर लेयर्स होते हैं, इसके भी फिर 2 लेयर्स या 2 स्ट्रेटा है। ये 2 लेयर्स या स्ट्रेटा, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो फंक्शनल लेयर होता है, जिसकी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जिसकी डिटैचमेंट होती है, डिटैचमेंट के बाद फिर उसकी रीजनरेशंस होती है, उस लेयर को, इस फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं। इसका नेक्स्ट लेयर वो है स्ट्रेटम बेसिलस। ये इसी लेयर के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर आर्टरीज, ब्लड सप्लाईज, ये लेयर क्या होगा? ये इसका बेसल लेयर है और ये इसका इंटैक्ट रहता है। यूटरस के बाद फिर नेक्स्ट कंपोनेंट्स है वो है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? इट इज अ नैरो पैसेज। इट इज अ नैरो पैसेज from the vagina to the uterus. या सर्विक्स को हम दूसरा नाम नेक ऑफ द यूटरस भी कहते हैं। सर्विक्स एक्चुअली क्या है? ये इस यूटरस के इंटीरियर पोर्शंस को भी हम सर्विक्स कहते हैं। सो सर्विक्स के वेरियस नेम्स होंगे। इंटीरियर पोर्शन ऑफ द यूटरस इज नोन एज सर्विक्स। नेक ऑफ द यूटरस इज नोन एज सर्विक्स। किस फॉर्म में होता है? ये एक नैरो पैसेज होता है जो कि वेजाइना को कनेक्ट करता है। किस चीज के साथ? यूटरस को, या यूटरस को वेजाइना के साथ कनेक्ट करता है। सो नैरो पैसेज from the vagina to the uterus. This cervix is normally, it is guarded by a thick mucus. एक cervix के ऊपर नॉर्मली क्या होता है? thick mucus होता है। ये thick mucus प्लग बनाता है। ये म्यूकस प्लग क्या करता है? ये थिक म्यूकस प्लग ये स्पर्म्स की एंट्री को वो नॉर्मली ये उसको प्रिवेंट करता है। फाइनली हम आते हैं वेजाइना के ऊपर, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। इट इज अ थिन वॉल्ड ट्यूब जिसका नॉर्मल लेंथ होता है for 8 to 10 सेंटीमीटर। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि ये पैसेज प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? बेबी के लिए ड्यूरिंग अ प्रोसेस, जिसको हम डिलीवरी कहते हैं। ये आल्सो पैसेज प्रोवाइड करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। इसका मेन फंक्शंस क्या होगा? दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेप्शंस ऑफ मेल सेक्स सेल्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस नोन एज कपुलेशन। डायग्राम्स के तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पूरे टॉपिक्स का समरीज आप देख सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ये कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले वही, अनलाइक मेल रिप्रोडक्टिव गोनेड्स, वही क्या है? वो इंट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमेन्स के अंदर होते हैं।
यूटरस के साथ अटैच होते हैं, इसके साथ सेवरल लिगामेंट्स होते हैं। वही इसके अंदर फिर हमने कहा कि इसमें क्या होते हैं, टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते। इन टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने ओवेरियन पॉलिकल्स कहा। ओवेरियन पॉलिकल्स के अंदर फिर क्या होते हैं, उसमें इमेच्योर एग होता है जिसको हमने ओविसाइट्स कहा। हर मंथ एडल्ट वुमेन्स के अंदर क्या होते हैं, यही ओवेरियन पॉलिकल्स ये मैच्योर होते हैं। ओवेरियन पॉलिकल्स से ग्राफियन पॉलिकल्स बनता है और उस ग्राफियन पॉलिकल्स के अंदर फिर मैच्योर एग होता है जिसको हम सेकेंडरी ओविसाइट्स कहते हैं। वही से हर मंथ इस सेकेंडरी ओविसाइट्स का रिलीज होता है ग्राफियन पॉलिकल्स। रिलीज के बाद फिर नेक्स्ट कंपोनेंट्स है, उसको हमने नाम दे दिया फैलोपियन ट्यूब। इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, इसको हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। सो फैलोपियन ट्यूब के वेरियस नेम है। इसका दूसरा नाम है यूटेराइन ट्यूब, इसका तीसरा नाम है ओविडक्ट। यही ओविडक्ट अगर आप देखें, ये ओवरीज के साथ कनेक्टेड नहीं होगा बल्कि इसके दरमियान गैप होता है। ये ओवरी के नज़दीक से स्टार्ट होता है, यूटरस में ख़त्म होता है। इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, जो ओवरी के नज़दीक होता है वहाँ पर फ्रिंज होते हैं, फ्रिंज लाइक आउटग्रोथ्स या फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स जिसको हम नाम देते हैं फेमरी। फिर उसके बाद आर्म लाइक आउटग्रोथ्स होता है जिसको हम स्टार्क या फिलामेंट्स। फिर इसका मिडल सेक लाइक पोर्शन या स्वालन पोर्शन जिसको इम्पुलिस, और फाइनली इसको हम कहते हैं कि जहाँ पर जिसका पोर्शन वो ओपन होता है यूटरस में, उसको हम एस्टमस कहते हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम देखें ओविडक्ट का, तो उसमें हमने देखा कि ये स्मूथ मसल से बनते हैं और साथ में दो तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। तो कंबाइन जब स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शंस होती है सिलिएटेड सेल्स के सिलिया इसके अंदर इस एग्स को वो पुश करते हैं, उसको ट्रेवल करते हैं। कहाँ तक उसको ट्रेवल करते हैं, उसको वो यूटरस तक लाते हैं। नॉन सिलिएटेड सेल्स का काम क्या होता है कि एग्स को या अगर स्पर्म्स हो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको मॉइस्ट रखते हैं। फिर इसके बाद इसका जो मेन नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर्स आता है वो यूटरस है, पेल्विक रीजन में होता है। इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर्स होता है। ये थिक वॉल्ड हालो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। इस थिक वॉल मस्कुलर स्ट्रक्चर्स के 3 मेन काम्स होंगे। एम्ब्रियो उसको ये रिसीव करता है, उसको फिर रिटेन करता है, उसको ये नरिश करता है। अगर यूटरस की हिस्टोलॉजीज हम देखें, इसके लेयर्स हम देखें, तो इसका आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। इनर मोस्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम एंडोमेट्रियम। दरमियान में क्या होता है, वो मायोमेट्रियम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूटरस, यूटरस का हिस्सा है, इसका इंटीरियर पोर्शन है। तो सर्विक्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द यूटरस भी कहते हैं, नेक ऑफ द यूटरस भी कहते हैं। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर थिक म्यूकस होता है जो म्यूकस प्लग बनाता है और स्पॉन्ज की एंट्रीज को वो नॉर्मली प्रिवेंट करता है। और ये एक नैरो पैसेज है जो कि यूटरस को विजाइना के साथ कनेक्ट करती है। आखिरी पोर्शन उसका वो है विजाइना, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि ये मेल सेक्स सेल्स को रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कपुलेशन। विजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि ये पैसेज प्रोवाइड करता है यंग वन के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। ये आल्सो प्रोवाइड अ पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल। विद दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पे गमीटोजेनेसिस करवाएंगे।